guys, ladies and gentlemen, boys and girls. So here is the wonderful, gorgeous, and Major Prajakta Desai with everything. ATC officer, the first UAV observer pilot from the Indian Army. That's a great honor and privilege to be. And she was skydiver, mountaineer, whatnot. And more than anything, Prajakta is animal rescuer, which is a very noble deed, very noble deed. Probably बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं, wherein they show their love and respect to the animals. And I've seen lots and lots of photos and videos of you. So hats off to you, Prajakta, for that. Thank you so much, sir. Thank you so much. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ना, तो डोंट माइंड, मैं कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा. Definitely. One is no official secrets and nothing. We cannot discuss that, and we will not. Second thing is, ऐसे भी कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा एम्बेरस हो, वो भी नहीं पूछेंगे. तो ऐसे जो मस्ती वाले ना, certainly. So before we start, everyone wants to know, a lot of people ask me, Prajakta ma'am, so what is that story of बचपन का प्यार? Sir, me and my husband, we've met in college. हम college के दोस्त हैं. Sir, I was in RIA. You are from Mumbai, so you would know. Sir, हमारा पूरा ग्रुप था. हम सभी पागल थे फौजीज बनने के लिए, all of us. And RIA से हमारे से एक दो बैच कोई जूनियर, फिर हम एनसीसी में थे, वहां के फ्रेंड्स और बिल्डिंग वाले फ्रेंड्स, ऐसे करके सर वी वर लाइक 7-8 ऑफ अस जिनको फौज में जाना था. एंड सर यू वोंट बिलीव, मैक्सिमम वेंट इनटू फौज. और दो जो फौज में नहीं गए ना सर, वन इज इन जिनीवा एंड द अदर गाय इज इन यूएस. बस ये तो जो बच गए ना फौज से, ये लोग चले गए बाहर और हम सब आ गए फौज में. तो वी वर अ ग्रुप ऑफ पीपल सर जिनका यही आइडियोलॉजी था कि हमें फौज में जाना है, आउट ऑफ विच फ्यू ऑफ देम वो ऑलरेडी एनडीए में रेकमेंड वगैरह हो चुके थे. फॉर दैट मैटर माय हस्बैंड ऑल्सो. तो who could never, maybe who never made it because of some medical reasons, ये वो. So people who had that same orientation, so we also started hanging out together. NCC में थे, तो वहाँ हमारी दोस्ती वगैरह ज्यादा हो गई. And obviously I fell in love with him after my college. So till college like he was my best friend. मतलब जिसको कोई भी चीज आप सीक्रेट बता सकते हो, जिससे कभी भी लड़ सकते हो, जो हमेशा बिकॉज ऑफ whom वो मेरे ही यहाँ पे रहता है, ज्यादा दूर नहीं रहता. उसकी वजह से मैं हमेशा कॉलेज में मेरे लेक्चर्स के लिए लेट होती थी. एंड ही बीइंग सच एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, उसको कोई कुछ नहीं बोलता था इन स्पाइट ऑफ ही बीइंग लेट. बट जब भी मैं मेरे क्लासेस में सर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स और लेक्चर्स अर्ली मॉर्निंग होते थे हमारे मतलब लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज में, तो एवरी टाइम माई HOD यूज्ड टू गिव मी सच डर्टी लुक्स फॉर कमिंग लेट. मतलब आई यूज्ड टू बी लाइक अ डिफॉल्टर ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड दिस गाय वाज द ब्लू आइड गाय ऑफ फिजिक्स. तो उसको कोई कुछ नहीं बोलता था. And people used to think he's my boyfriend. Then but ऐसा कुछ नहीं था. We were just good friends. And yes, we had a relationship only after college. But that too for a very short time because immediately sir उसके बाद academy चले गए. और since then तो we were in the forge and then we got married. So that is how I know him since 2005-06. तब से जानती हूँ मैं उसको. So yeah, so all those who are listening to us, हम दोनों मुंबईया हैं, both of us are from Mumbai, and then that's how RIA college, let me tell you, it's one of the prestigious college in Mumbai. So like way back when I was in junior college 11th-12th, that time RIA Ruparel was big name. Everyone wanted to be either in Ruparel या RIA. ये दो college होता था सबका top इसमें. So great to know that. So how's the transition now from पहले तो दोनों फौजी थे, अभी you are a फौजी wife more or less, ex veteran. In fact, I had asked Neeti also same thing long back कि वो transition कैसे. And lot of my course-mates are there who are married to naval officers, so in permanent commission and doing that. How's that transition? सर अभी तक मुझे ज्यादा फील नहीं हुआ है बिकॉज इट इज जस्ट फ्यू मंथ्स दैट आई हैव गॉट रिटायर्ड एंड स्टेइंग विथ हिम इन द सेम कैंप जहां मेरी यूनिट है. तो अभी भी लोग मुझे मिलते हैं, अभी भी विश करते हैं. तो अभी भी कभी मुझे ऑफिसर वाली ही फीलिंग आती रहती है. कहीं भी जिम में जाओ, कॉम्प्लेक्स में जाओ, वही लोग मिलते हैं.
So till now I have not that way transitioned, but yes, now I get more time with him. Earlier कैसे था sir, fighting around all the time for our postings and all, having long separations. So from last Seriously. 1 odd year I'm feeling कि वो बढ़िया है, we are staying together. And sir और एक चीज, for long time I did not know Neeti ma'am is my neighbor. Oh, is मेरा it? जो ब्लॉक नहीं है, पता था क्या? Oh, मेरा तेरी. ब्लॉक है, मेरे नेक्स्ट वाले ब्लॉक में नीति मैम रहती है, एंड वी कनेक्टेड ऑन फेसबुक, सॉरी ऑन इंस्टाग्राम. और जो मैंने एक वीडियो शेयर किया था अबाउट दैट एलिफेंट्स गेटिंग इनटू आवर ऑफिसर्स ब्लॉक, so ma'am was saying this is outside my block. I said no ma'am, this is outside my block. Then I asked her, ma'am, do you stay in Sevak Road, I mean where I am at present, Siliguri? So she's like, yeah, I am here only. And that is the time we got to know we are just neighbors. So Oh, तेरी. Fauj Okay. is so small, sir. So small and so connected. Like I was speaking to Neeti couple of days back. मुझे पता भी नहीं था तुम हो करके वहाँ पर. Rajas is there, so Rajas से, like me and Neeti used to train together also with Olive. So that's how. And I think you are the youngest veteran, no? I think you are the youngest veteran to come into the veteran community. So Yes, sir. As good. of now, Good. here I am the youngest. But yes, my some of my juniors have also taken release, and but they're not that active here. So yes, I'm the youngest, sir. Junior most. In fact, like this particular forum, Instagram pe, I was not very active earlier, but lockdown gave an opportunity to connect to young people. Hum sab like you, me, all of us at different stage. Probably I'm 12 years, senior to you, but हम लोग, whether you are senior, junior, but we are bounded. हम सब एक ही bounded है with the community of being from the Fauj, and glad that हमारे time, I'm sure your time also, जब when we were aspirants, हमें कोई बताने वाला नहीं था इतना ज्यादा. There was no Instagram, no this. Probably our role now is to uh, guide and share our experiences जब तक time permits. So probably that's the way we give back to the community. So all those who are listening to us, try your best to understand and gauge from what we have learned. And let me tell you, आपको ये बताना चाहता हूँ, both me, प्राजक्ता और any veteran, हम लोग ने फौज जो देखे हैं बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा. कोई अगर 20-25 साल भी सर्व करे, he would have seen only that particular part where he is specialized. फौज is huge. फौज is huge. एक someone says कि जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था, कोई पूछे मेडिकल का क्या क्या है, both of us won't be able to tell you. हम लोग यही बोलेंगे जो हमने ये किया, राइट? सो ऐसे. सो आई कम, मैं रिवर्स से आता हूँ, rather than how you joined फौज, I will ask from the other side, ये साइड से, So when you finished your 10 years के आसपास जब होता है, I think Navy में they give us an option at 6th year to consider for permanent commission. So wasn't a case with you कि permanent commission का option मिला था, because now is the time when ladies got permanent commission, right? Which Yes, is a sir. big change. And let me tell you, I'm a biggest supporter of women getting permanent commission. And तभी किसी ने पूछा था कि सर एनडीए में लड़कियां आएंगी क्या करके. आई सेड वो दिन दूर नहीं है, which is going to happen, and trust me, it happened so soon. So it's a mindset, and glad that it has been accepted and that change is accepted. So didn't you opt for permanent commission? No, sir. I didn't. I wanted to quit only for a reason of being with my husband, and so I felt like 10 in. I wanted to serve more, but then I wanted to give priority to some part of my life when I wanted to stay with him. As I said, sir, we are like married for more than 7 years now, and getting postings was so difficult. He being into such an arm, I'm being into aviation, which is always at the rear because being assets, so we couldn't manage it together. So that was the reason. And so in army, they offer you at 9.5 years of service. That is the time you start giving your options whether you want to serve or not. And so just couple of months ago, you can say 8 or 10 months ago, वो verdict आया था of Supreme Court when they had allowed women officers. So all those women officers who had passed also 10 years, उनका एक special board consider हुआ था. And for us, we were with the regular board with along with the male officers.
So that happened just yes 6 or 8 months पहले बता देते हैं, and that is the time we apply. Okay. So, I mean, there was an option for you to join to opt for permanent Yes sir, commission, right? there was. So all those who are listening, काफी लोग पूछते रहते हैं कि सर शॉर्ट सर्विस से परमानेंट कमीशन मिलता है क्या, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में? So नेवी में कैसे है ना, certain branches get that option of permanent commission. Certain branches, not all the branches. जैसे टेक्निकल ब्रांच है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल, they get an option. And आर्मी में we get an option at 7th year. आप लोग को you get an option at 9.5. So to all those who are listening, you get an option. अगर आप OTA से जाते हो या INET से going as engineering graduate, definitely you get an option. And going in the future, all of you will get option for permanent commission. Only ये है कि you have to be throughout your 10 years in फौज, कोई पंगे नहीं लेना है, गलत पंगे नहीं लेना है, and there is something called ACR, annual confidential report, that has to be clean. And बाकी तो किसी को जाके मारना नहीं, पीटना नहीं, ये सब करोगे तो परमानेंट कमीशन के लिए कंसीडर किया जाएगा. आई एम श्योर same happens in army also, right? Yes sir, true sir. You have to just be consistent in your performance. What recently happened was the seats कम थी. Seats were very less because obviously पहले सिर्फ लड़कों के लिए ऑप्शन ओपन था, फिर लड़कियों के लिए भी ऑप्शन immediately ओपन किया गया. All those who were affected वो had to be taken in the board, so the seats were less. I feel sir जब तक now these aspirants है, जब तक ये वो स्टेज पे आएंगे, मे बी अराउंड 7 or 10-12 years from now, so तब तक तो सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा. इधर परमानेंट समथिंग वुड बी लाइक एनडी, जैसे एनडीए में गर्ल्स आ गई है, दे वुड बी परमानेंट फ्रॉम बिगिनिंग. तो वो मारामारी नहीं रहेगी कि मुझे शॉर्ट सर्विस से पीसी जाना है या फिर मैं स्टार्टिंग से ही पीसी होना है. बट आई टेल यू वन थिंग सर, कपल ऑफ एस्पिरेंट्स डू इवन आस्क मी कि आप अभी 10 ईयर के बाद क्या, 14 ईयर्स के बाद क्या. बट आई वुड लाइक टू टेल यू सर, मतलब देयर इज नो dearth of opportunities outside. There is no dearth of job. I feel if you are a ex-serviceman, you are a combatant, they get 10 to 11 or 14 years of combat ready soldiers, combat ready officers who are having a leadership which is used every day in the life. So the corporate companies want that. Like sir, मतलब कहते हैं ना, पका पकाया खाना लाके सर्व हो रहा है. So when they have somebody who is already trained, so there is a lot of scope. So बहुत scope है. I am telling out of experience also, and out of seeing all the veterans along with me, seniors and those juniors also put in their papers. Yes, there are opportunities. So people should not think ना कि हमें बाहर जाके job मिलेगी नहीं या हमारा क्या होगा उसके बाद. Very true. So again, जो आप लोग हमें सुन रहे हैं, to all of you those who ask us कि permanent commission अगर नहीं मिलता है तो what happens, so what happens? So nothing happens. It is our choice. अभी जैसे यंग होते हैं ना, even when I went into फौज, so मुझे ऐसे था कि शायद मैं कभी फौज नहीं छोड़ूं, I want permanent commission like all of us. But then as you grow up in फौज, your priorities changes. जैसे for you it was to be with your husband and so for me it was like more to be in Mumbai, and then my wife is a working professional, so many things changes. So the best thing is जितना भी आप सर्व करो, 5 years, 10 years, 7 years, पहले नेवी में 7 years होता था शॉर्ट सर्विस, so 7 years, 10 years, 14 years, बस दिल से और एकदम शिद्दत से सर्व करो, because you don't have to serve for 30 years to be a फौजी. 10 साल में भी सारा अपना जी जान दे दो and be decorated and come out with शान से आ जाओ बाहर करके ना. That is what I think both of us did at some point of time. And trust me, as Prajakta said, बाहर बहुत अपॉर्चुनिटी है. Yes, थोड़ा कष्ट होता है that transition, जब हम यूनिफॉर्म छोड़ते हैं, we are of the rank of major in army and lieutenant commander in navy. थोड़ा तकलीफ होता है because you are living a government job, you are living a job. मैं जॉब नहीं बोलूँगा, it's a way of life. What is a way of life? You are living a way of life, and then security is there, everything is there, and suddenly you are coming out. तो ऐसे होता है ना कि कल क्या करके, कल क्या होगा. बट देन इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट 1 year टू एडजस्ट एनीवेयर. और 1 साल में आप एडजस्ट हो जाते हो तो देन उसके बाद यू आर द पीपल हु आर इन द क्रीम ऑफ द क्रीम. सर आई एम नॉट एबल टू हियर यू. सर आपकी आवाज बहुत सॉफ्ट आ रही है.
एक मिनट हाँ अभी जस्ट वन सेकंड नाउ हेलो Yes, sir. Now it's अभी fine. Yes, sir. Yes, sir. Now it's fine. ओके सो आई वाज टेलिंग देम कि एक साल थोड़ा डिफिकल्ट होता है टू रीएडजस्ट इन लाइफ उसके बाद everything our experience gets added as 11 years and things उसके बाद you are the cream of the cream सारे corporate आपको जम मार के लेके जाएंगे you know कि come man Yes, sir. so nothing So because nothing is I think easy yeah So I think you're combining what you've learned in Forge, उसको आप थोड़ा tweak करके you are imbibing all those qualities and giving it to the corporate. That's what I feel. exactly कि आप यहाँ का भी exactly बेस्ट ले रहे हो वहां का भी बेस्ट उठा रहे हो यू आर लर्निंग इट बाय योर सेल्फ एंड यू आर पुटिंग इट ऑन द प्लेटर कि दिस इज व्हाट आई हैव then obviously sir the companies are also happy that you have somebody who's performing you have somebody who's so dedicated to the job but कष्ट तो थोड़ा होता है सर वो थोड़ा बहुत because you're so much used to the फौजी कल्चर दैट अभी मुझे ये चीज इस टाइम पे चाहिए मैंने रिपोर्ट के लिए किसी को बुलाया तो पर्सन हाजिर होगा दिस इज व्हाट वी हैव फॉर लाइक 10-11 years हमने यही किया होता है कमांडिंग द मैन एंड हियर इट yeah इज मोर ऑफ अ टीम प्ले when you are an integral part of the team not a person heading a team exactly but yes जो सर there's a lot of difference sir a command kind of a thing over your sub unit and working with a team in corporate तो things are little different but हाँ थोड़ा सा कष्ट होता है ज्यादा नहीं in fact ऐसे हुआ था ना कि you know like what happens is many a time मेरे साथ हुआ था you know like I was my last posting was in Naval Dockyard Mumbai so वहाँ पर it's a industrial posting with a officer being posted there so you have a lot of people lot of you command close to 300 400 people and then आपका सर हर चीज के लिए you work that's a different thing आप टेक्निकल काम करते हो ये and suddenly when I was out not that you know हम लोग को ये चाहिए privilege चाहिए nothing like that but suddenly when I joined the corporate वहां ऐसे था कि suddenly some junior guy मतलब नो आपसे 10 12 15 साल छोटा होगा and he's calling you by the name hey Vijay how are you करके ना let's go for a यस smoke and I was like वो तेरी फौज में होता ना अभी तेरा गला दबा के पानी में डाल दिया होता करके ना and then that's how you get used to life you know that's how you have to be so it's all about adaptability and suddenly पता चला हमारा जेरोक्स है वो जेरोक्स खुद ही निकालना है बाकी का जो है वो खुद ही करना है so part of life that's how everything happened so how difficult was it for you to leave the forge the last day in uniform या बोलते हैं ना how difficult it was सर इट इज सो हैवी आई टेल यू सर मैं उसी जगह पे पोस्टेड ही मेरी फर्स्ट एविएशन पोस्टिंग यही थी सिलीगुड़ी में एंड इट हैपेंस कि मेरी लास्ट पोस्टिंग भी यही है तो तभी आई वॉज अ 22-23 year old लेफ्टिनेंट विथ शॉर्ट हेयर जो अपनी स्कूटी डर डर के चला के चली जाती थी एंड आई रेप्लीकेटेड दैट ऑन माई लास्ट डे आई टोल्ड माई हस्बैंड तुम गाड़ी लेके जाओ मैं स्कूटी में जाऊंगी यार मैं स्कूटी में ऑफिस गई थी मैं स्कूटी में वहीं से आई मैंने क्वार्टर गार्ड पे लास्ट मेरा सल्यूट लिया and I exited my office and it was such a heavy feeling obviously you feel like crying also at that point it was heavy feeling that I started my aviation career in this place and I ended it in this place so I did that the whole thing and the best part was in the evening my husband he had coordinated with all my seniors मेरे कमांडिंग ऑफिसर्स पुराने वाले फर्स्ट लास्ट देन माय कंपनी कमांडर फ्रॉम ओटीए माय नियर पोस्टमेट्स उनसे सबसे एक वीडियो बनवाया था बिकॉज आई हैव रिटायर्ड एंड ही प्लेड इट इन द इवनिंग सो दैट मेड इट मोर स्पेशल व्हेन यू हियर about yourself from people who've trained with you or people who've taught you बट हाँ हैवी तो बहुत हुआ एंड इमीडिएटली सर सेकेंड थर्ड डे आई पैक्ड ऑल माई यूनिफॉर्म्स ऑल माई अक्रूटमेंट्स मैंने सब कुछ सूटकेस में रख दिया सो दैट आई डोंट मिस इट फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स I swear. So that's a very heavy moment. You know, like other day I'd posted something. So I do write small quotes and all. I say masti wale. You know, I'm a person who loves humor. So मैं वही बोला था. If you think the toughest thing is breakup, you have to be in your. You know, you have to be the last day in uniform. Probably that is the यस toughest day. Which of Aussies, you know, irrespective of any rank, cadre, any service, Army, Navy, Air Force. So that's the toughest time, you know. So मेरे साथ क्या हुआ था कि my last posting was Naval Dockyard Mumbai, and then as I said, I was commanding some 300 people, well, you know, सर 300 people in that work center.
एंड नेवल डॉकयार्ड के अंदर आने के लिए आपको बहुत तामझाम है, यू रिक्वायर पास एंड ऑल दोस थिंग्स। I know, sir. I know. And now आने you'll नहीं be देते वहाँ पे लोग। so you will be thinking कि अभी ये बोलने वाला है कुछ। तो ना क्या हुआ कि उसके पहले किसी को भी अंदर होना पड़ता था तो ऑफिसर्स जो होते थे उसका साइन लगता था, एंड देन पीपल विल, आप जब गेट पे जाओ 4 लोग सलाम सैल्यूट दे रहे हैं आउट ऑफ रेस्पेक्ट एंड वेरियस थिंग। एंड देन बाहर से जो बैच वाले अंदर आते हैं, बाहर से जो गेस्ट आएंगे उसको एस्कॉर्ट करके आएंगे बहुत सारा, एंड वी यूज्ड टू थिंक यूनिफॉर्म में क्या इतना क्या तामझाम करके, यू नो। सो माय लास्ट डे ऑफ सर्विस वाज 4 Jan 2009, एंड ट्रस्ट मी 4 Jan इतना काम था, बहुत कुछ अंदर ही रह गया था बिफोर आई लेफ्ट। एंड 5th Jan जब मैं अंदर आने के लिए द सेम मेरे ऑफिस में आने के लिए आई नीडेड अ पास, you know, and then the junior officer who was there, he signed my pass, though you know, so I was sitting in the lobby, the waiting room जो होता है ना वहाँ पे अंदर आने के लिए, it was such a drastic moment। और वो जो दुख हुआ ना लाइफ में, then I said कि this is the tradition and culture of Navy। आप कोई भी हो, when you are out, as simple as that, you are an ex-serviceman, and then you know everything applies to you also, जो बाहर वाले लोगों के लिए। सो उसके बाद मैंने कसम लिया कि मैं ये साइड पे ना कभी मुड़ के नहीं देखूंगा करके, probably this is the last time I am coming, but yes, so I really just one second, शायद कट होगा, just one second। Sure. I'll save this, just one second। I'll rejoin again, just wait, ये ना yes, we'll hold on। sorry, हाँ, we can continue। वो कुछ चार्जिंग का इशू बता रहा था। It's time to buy a new phone शायद, तो देखते हैं। so that was the thing। Now coming back to the question, lot of them, बहुत कम aviation officers मिलते हैं हमको फौज में, you know, in that veteran or what was। So why that decision of joining the aviation cadre? Sir, मतलब actually I'm very short in height, I'm just 5 feet, मैं bare minimum what is required। I wanted to be a pilot। मैंने एयरविंग एनसीसी ज्वाइन की थी, वन महाराष्ट्र एयर स्क्वाड्रन, जय हिंद कॉलेज में उनका ऑफिस है, तो एवरी संडे आई यूज्ड टू गो देयर, एंड वहां मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टू फ्लाई माइक्रोलाइट्स, जेनेर, एक्सेर, एंड सर जो देवलाली में जो एविएशन, आर्मी एविएशन सेंटर है, वहां पे कैट्स भी है, आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल, वहां पे देयर इज अ ग्लाइडर। इट इज सर, इट्स नॉट अ पावर्ड ग्लाइडर, बड़ा सा ग्लाइडर है विद लॉन्ग विंग्स, इट्स कॉल्ड अ सेल प्लेन, विच इज ड्रिवन बाय अ विंच। जैसे वो विंच ऊपर जाएगी, you go at a certain height, वहां से विंच छूटती है and you come gliding, it's a proper plane। So I had got opportunity to fly all this। I had around 32 launches on the glider, some or 5 hours together on both Zenair and Exair। तो सर तभी मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट थी कि I want to fly, and we had then squadron leader, sir would be अभी group captain now, Ganesh Sawant, who was an administrative officer, and sir had such an amazing personality, so he was the biggest motivator behind all the NCC cadets to join Air Force। तो मैं कहती थी सबको, तो मैं तो फाइटर पायलट बनूंगी, पता था कभी बनूंगी नहीं, बट ऑलवेज एम वाज ऑलवेज ना हाई के करूंगी तो कुछ ऐसा, ऑलवेज आर्मी नेवी एयरफोर्स कहीं भी आर्म फोर्सेस में जाना है। एंड देन व्हेन आई यूज्ड टू स्पीक टू सर, मैं सर को कहती थी, सर मैं तो हाइट वाइट छोटी है मेरी, मैं कैसे जा पाऊंगी? बोलते सो व्हाट, जस्ट ट्राई, ज्यादा क्या होगा, रिजेक्ट हो जाओगी। मैंने कहा सर रिजेक्ट तो 100% होंगी, इवन इफ आई गेट रिकमेंडेड आई एम नॉट गोइंग टू क्लियर मेडिकल्स ऑफ बीइंग अ पायलट। तो ही यूज्ड टू कीप मोटिवेटिंग एंड से सो व्हाट, इट इज जस्ट दैट तुम फेल हो जाओगी, नथिंग मोर विल हैपन, सो अप्लाई। सो तभी सर मैंने पागलपन में फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी अप्लाई किया था। एट द सेम टाइम मैंने ओटीए के लिए भी अप्लाई किया, एंड व्हेन मेरा ओटीए में हो गया, that is the time when in one of the months our DS had come to our classes, she was telling me there is another arm which is new, because army aviation for women had started only in 2009 and I was training in 2010। so she told us there is a new branch, army aviation, and you get to become air traffic controllers। मुझे already air force की idea थी, and air force air traffic controlling is really good, so I used to always think pilot नहीं तो यहाँ तो air traffic controlling or something like this। So when I got to know and I heard it from my platoon commander के
आर्मी एविएशन में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में है सर। उस दिन से मैं एविएशन ऑप्टी हो गई। आई यूज टू ब्रैग अबाउट इट टू ऑल माई कलीग्स अराउंड, कोर्समेट्स को बोलती थी एविएशन तो मैं ही जाऊंगी, एविएशन की सीट तो मैं ही लेके रहूंगी। तो उस दिन से मैं इतनी हार्डकोर ऑप्टी हो गई थी। आई सेड आई वांट टू डू समथिंग दैट इज डिफरेंट एंड दिस इज समथिंग रिलेटेड टू फ्लाइंग। एंड सर तभी ऐसे होता था, अभी भी सर सेम है। Every post will have one vacancy of women officer coming for air traffic controlling, only one. So the competition ज्यादा था, पर मैं पहले से ब्रैक करती रहती थी लोगों को कि मिलेगी तो मुझे ही देखो, मैं ही लेके रहूंगी। एंड टच वुड, गॉड वाज आल्सो ग्रेटफुल टू मी। आई गॉट कमीशन्ड इनटू एविएशन। Seriously, there's something होता है ना, visualization, that dream come true की Yes sir, when you're yes so confident कि हो जाएगा करके. So now coming back to this question, why Fauj? Now we happen to deal with lot of youngsters, काफी लोग मिलते हैं. sir. Everyone is so passionate about Fauj. So probably my generation, maybe since I'm like 10-12 years before you, तो हमारे generation में इतना नहीं था. So when it came to your generation, तो तभी इंस्टाग्राम ये सब नहीं था. बट देन योर जनरेशन वाज अ कट बिटवीन अस एंड नाउ अभी के जनरेशन. अभी तो इंस्टाग्राम, Yes. फेसबुक, सो मेनी थिंग्स आर देयर, पीपल आर मोटिवेटेड. बट तुम्हारे जनरेशन में क्या ऐसे मोटिवेशन था कि फौजी ज्वाइन करना है करके ना? व्हाट वाज दैट मोटिवेशन? सब बड़ी फनी सी स्टोरी है। 95 में जब बॉर्डर मूवी आई थी, माय फादर हैड टेकन मी टू द थिएटर टू वॉच इट। तो वो फर्स्ट सीन है जहाँ पे लिखा जाता है समवेयर इन पाकिस्तान, ऐसे ना नीचे वो सबटाइटल्स आते हैं, यू सी अ आर्टिलरी बैरल और उसमें से वो राउंड फायर होता है। वो दैट इज द फर्स्ट सीन ऑफ बॉर्डर। और आई वाज 8 इयर्स ओल्ड, मैं इतनी खुश हो गई थी। मैं मेरे पापा को कह रही थी मूवी में मैं जाऊंगी ना आर्मी में। बट सर तभी तो पता नहीं था आर्मी ऑफिसर्स क्या होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं कि नहीं, लड़कियां होती हैं, कुछ नहीं। और फिर उस दिन मैं कह रही थी काश मैं लड़का होती, मुझे सनी देओल बनना है, मुझे भी ऐसे ना आर्मी में जाना है। सो दैट वाज द थिंग, इट ट्रिगर्ड मी समवेयर व्हेन आई वाज 8 इयर्स ओल्ड। एंड सर उसके बाद कंटिन्यू हुई, कुछ ना अलग करना है। सर कॉलेज में भी मतलब केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में लोग तो मुझे लाइक उस टाइम ना से डिफॉल्टर बुलाते थे, बिकॉज मैं जर्नल्स फील्ड नहीं होते थे, मैं एनसीसी करती रहती थी। फिर सम ऑफ योर कोर्स क्लासमेट्स आल्सो समटाइम्स मीन टू यू कि ये कभी आती नहीं है, ये तो कुछ क्लियर ही नहीं करेगी। तो मैंने सर ऐसे भाग भाग के जाती थी, ऑल थैंक्स टू माय देन फ्रेंड नाउ हस्बैंड, जो हमेशा मुझे लेट कराता था क्लासेस के लिए। हमेशा लेट जाऊंगी, जर्नल्स लेट हो जाएंगे, तो लोग सोचते थे यार ये क्या ही ना, मतलब इसका हो गया है थैंक यू यहीं पे। तभी मैं पूछते लोग मुझे करना क्या है 11th-12th में ना, मैं कहती थी आर्मी में जाऊंगी। तो तभी ना सर ये डॉक्टर और इंजीनियर्स बनने का बहुत फैट था, 2003 वगैरह की बात कर रही हूँ। तो मैं कहती हाँ हाँ मैं डॉक्टर बनूंगी ना, फौज में डॉक्टर बनूंगी। तो लोग कहते हैं ऐसे पागल है क्या, फौज में कौन डॉक्टर बोलता है। मैंने हाँ AFMC होती है उसमें जाके डॉक्टर बनूंगी। मतलब एवरीथिंग सर आई यूज्ड टू कीप रिलेटिंग टू आर्मी या रिलेटिंग टू फौज, यहाँ जाऊंगी मैं वहां जाऊंगी, और सब देखते रहते कि क्या लड़की बोले जा रही है। बट सर देवर फ्यू प्रोफेसर्स ऑफ माइंड, माई HOD, माई 2-3 केमिस्ट्री डिपार्टमेंट प्रोफेसर, आई डोंट नो उनको क्या फेथ था मुझ पे। हम और जहां जहां मैं गड़बड़ करती थी ना, अलग से मेरे को बुलाते थे, बोलते तेरा जर्नल गलत है, स्टार्ट डूइंग इट लाइक दिस, तुझे आर्मी में करियर करना है ना, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। सो आई यूज्ड टू वंडर ये क्या बोले जा रहे हैं, हाउ इज केमिस्ट्री गोइंग टू हेल्प मी। बट ट्रस्ट मी सर, ये आई थिंक प्रोफेसर्स टीचर्स आर समबडी, शायद वो आपका कैलिबर या एक्यूमेन बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। And they used to tell me if you get good marks in chemistry, if you do your graduation well, that is going to help you ahead. मैं कहा yes ma'am, मतलब sir I wasn't that intelligent student, but I was not even a bad student. Yes, I was a good ना सर ठीक ठाक वाली स्टूडेंट थी, बट उनको बहुत पुश करना पड़ता था। तो सर वहां से ना वो बढ़ता गया मेरा पैशन। एनसीसी में जैसे आई वी मेट स्क्वाड लीडर गणेश सावंत सर, अलग ही पर्सनालिटी थे वो, हमारे स्पेसिफिक क्लासेस लेते थे फॉर ग्रुप डिस्कशन, या ही यूज्ड टू जस्ट कीप ट्रिगरिंग अस कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है। तो मैंने एक दिन ऐसे ही बोल दिया आई वांट टू बिकम एन ऑफिसर इन आर्म फोर्सेस। तो बड़े गुस्सा हो गए, कहते हैं व्हाट इज दिस ऑफिसर इन आर्म फोर्सेस, बी फोकस्ड, जिंदगी में क्या करना है ना एक ही दिशा में जाओ। सो दैट इज वॉज अगेन अ ट्रिगर टू मी। मैंने कहा हाँ बी फोकस, सर ने कहा है बी फोकस, तो फोकस होना चाहिए। फिर मैं सबको मुझे फाइटर पायलट बनना है, मतलब आई हैड दैट थिंग कि करना तो है, बट बहुत वेग चल रहा था। एंड सर एज आई सेड आई फाइनली मेट दीज बंच ऑफ पीपल, आई वुड से सर दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन माई बैच। हम जितने भी, हम कॉलेज में तो हम 5 लोग थे,
हाँ, ये 5 में से ये 4 अपने डिपार्टमेंट के टॉपर्स इन इंक्लूडिंग माय हस्बैंड इन देयर ग्रेजुएशन, एंड आई वाज द वन विद ओनली 70%. सो आई यूज्ड टू थिंक यार मैं कहाँ इन लोगों में आ गई, ये सब इंटेलिजेंट लोग, बट दीज पीपल केप्ट मी पुशिंग फॉरवर्ड. एंड यू नो सर, वो मोटिवेशन, कॉन्स्टेंटली फौज की बातें करना, रेकमेंड हुआ ये, यहाँ ऐसी प्रिपरेशन वैसी प्रिपरेशन, इतना मेरा बेस इन्होंने सबने मिलके, फ्रेंड्स फैमिली ने स्ट्रॉन्ग बना दिया. फिर मैं सोचती रही हाँ अभी तो यही है, और वो मेरा फोकस जैसे स्कोप इतना वाइड था, धीरे धीरे ऐसे नैरो होता गया, एंड आई वेंट ऑन द राइट पाथ. एंड सर अपार्ट फ्रॉम दैट मैं खुद को भी थोड़ा पैट देना चाहूंगी दैट आई डिडंट मूव अवे फ्रॉम माय एग्जैक्ट गोल. कभी कभी लगता था सैलरी ज्यादा होगी कि नहीं, चीजें सही होगी कि नहीं, क्या मुझे यही करना है, बट देन माय फोकस वाज क्लियर, जाऊंगी तो आर्म फोर्सेस में. So that is how my entire journey became, and my husband also has a major part in it. मेरे एसएसबी के भी टाइम पे वो मुझे एक ही फोन करके चीज बताता था, ज्यादा मत बोलना, ज्यादा मत बोलना, ये तेरी ना बीमारी है, तू बहुत बोलती है. एवरी डे आई टू गिव हिम अ कॉल आफ्टर माय दिस ना, रात को एसटीडी बूथ से, ही वाज माय फ्रेंड देन. ज्यादा नहीं बोलना, ठीक है, आज क्या हुआ, मैंने कहा XYZ हुआ, ओके, ज्यादा नहीं बोलना, keep it to yourself, keep yourself calm. So these were the people who controlled maybe my shortcomings and boosted my morale again. And obviously I had to put in my best, and that's how I went into Forge. Hello. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. तो जो भी सुन रहे हैं, all those who heard Prajakta now, how passionate she is, उससे पता चलता है how focused she is. So जो भी आप लोग जाना चाहते हैं फौज में, you have an answer here. See her life, see her life, very very focused what she wanted, and of course she had a very supportive boyfriend. So all of you should get a supportive boyfriend. Supportive boyfriend. So now my next question is obviously फिर जब how was your in short na SSB का experience? A lot of people ask us, so how was that for you? सर मैंने कोचिंग की थी फॉर एसएसबी, बिकॉज सर मतलब बीइंग अ फर्स्ट टाइमर, और दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट इज रियली अमेजिंग, पुणे में है सर. एंड वन थिंग अबाउट दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट इज ना, सर हमें स्पून फीड नहीं करते थे. ही नेवर टोल्ड अस व्हाट इज टू बी डन, ही टोल्ड अस व्हाट इज नॉट टू बी डन. XYZ गलतियां मत करो. एंड सेकंड थिंग, सर कैन यू हियर मी? Yes. एंड सेकेंड थिंग, ही यूज्ड टू टेल अस के साइक टेस्ट में टाइम कैसे मैनेज करना है, स्टोरी में सुपरमैन नहीं बनना है, अगर सुपरमैन हो तो सुपरमैन बाकी लोगों की भी हेल्प लेके कोई टास्क करता है. ऐसा जनरली जैसे स्टोरी आती है कि मैंने एक बिल्डिंग जलती हुई देखी तो लोग लिखना चालू करते हैं कि मैंने अकेली ने ना, आई वॉज द होल एंड सोल इन एक्सटिंग्विशिंग द फायर. सो ही यूज्ड टू टेल अस लॉजिकल थिंग्स. तो रियल लाइफ में ये करोगे क्या? नो. रियल लाइफ में क्या करोगे? फायर ब्रिगेड को बुलाओगे, 10 लोगों को एक साथ लोगे, फिर आप फायर ये करोगे. सो दीज आर द थिंग्स ही यूज्ड टू कीप टेलिंग अस. सो एसएसबी के लिए सर आई एक्चुअली फॉलोड एवरीथिंग दैट सर टोल्ड अस. मैं मेरे फर्स्ट एसएसबी में से स्क्रीन आउट हुई थी, मैं फुल कॉन्फिडेंस से गई थी, फुल कॉन्फिडेंस, बिकॉज इतना पंप अप मुझे जिंदगी में लोग करते थे, मुझे लगता था मैं ही कुछ हूँ. सो फर्स्ट एसएसबी व्हेन आई गॉट स्क्रीन्ड आउट, इट वाज लाइक अ आई ओपनर फॉर मी के यू आर नॉट इंडिस्पेंसिबल, तुम भी एक नॉर्मल इंसान हो, तुम भी स्क्रीन आउट हो गई हो, नाउ गो बैक. जैसे ही मैं स्क्रीन आउट हो गई बैंगलोर 17 एसएसबी से, बस पकड़ी, घर चली गई. ऑब्वियसली बहुत बुरा लगा था, बट उसके बाद सर आई समवेयर जो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था उसको मैंने पूरा नीचे लाया. देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, एंड जब घर पे कोई नहीं था, पेरेंट्स काम पे चले जाते थे, तो मैं डायरी में लिखती थी मेरे प्लसेस एंड मेरे माइनसेस. फिर मेरे फ्रेंड्स को पूछती थी यार मेरे बुरे चीजें बताओ, अच्छी चीजें मत बताओ, मेरी बुरी चीजें बताओ. तो वो सब मैं लिखती थी. देन आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड के तुम्हें PIQ फॉर्म में क्या दिखाना है कि तुम्हारे क्वेश्चंस will be answered according to that. I devised this kind of a method के interviewer should interview you as you wanted. So write a PIQ which is justified. और मैंने सर जैसे मैं सबको बताती हूँ झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ कवर अप करने के लिए 5 दिन बहुत बड़ा टाइम में नहीं कर पाते. जैसे सर मेरे इंटरव्यू ने आई हैड टोल्ड देम कि मैंने रॉक क्लाइंबिंग की है. आई यूज्ड टू डू दैट विद माय हस्बैंड ओनली. उसी के साथ मैं रॉक क्लाइंबिंग वगैरह ट्रैकिंग जाती थी. So I had a little bit of fair knowledge.
तो माई इंटरव्यू आस्क्ड मी अबाउट इट कि हैव यू डन रॉक क्लाइंबिंग, यू मेंशन्ड। आई सेड यस सर, मैंने यहाँ यहाँ की थी सर। मुंबई में ही हमारे यहाँ पे कल्याण के आगे है, वहां जब बड़ा रॉक फेस है तो वहां जाके हम करते थे। हाँ, so he asked me about that and that just stopped, and all of a sudden in the end of my interview he asked me, are you aware what a Jumar is? So now Jumar is that equipment which is like an ascender, आपको ऊपर चढ़ने में रॉक क्लाइंबिंग में हेल्प करता है, माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट only. So I said yes sir, I am aware, these are the functions. तो कहते okay okay. Then when I went back I told my coaching में ना colonel को कि sir this was what was asked to me. That is the time he brought out, these are the follow-up questions they ask to check whether you're lying or not. He's like, if you were never done mountaineering या फिर rock climbing, तुम बता ही नहीं पाते क्या जुमार है. So these are ना जो बीच बीच में ऐसे ना वो तुक्के मारते रहते हैं कि पकड़ते हैं कैंडिडेट को कि कहाँ कैंडिडेट झूठ बोल रहा है. तो ये इंसिडेंट मैं हमेशा सबको बताती हूँ कि अगर किसी चीज का आइडिया मत हो ना तो प्लीज उसको बोलो मत. Unless and until you can justify what you are saying, please speak it. Seriously, I totally agree with you. And हम लोग भी एजल से SSB and all are there some agents. They know. सर आपकी आवाज सॉफ्ट आ रही है दोबारा. हाँ, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ सर. नहीं, वही मैं भी लाइक आई टेल ऑल ऑफ देम कि आप जितना भी ट्रू रहो, आपकी पर्सनालिटी दर्शाओ. बिकॉज SSB सब जमाने से है, हम सब जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से SSB है. दे नो व्हाट टू आस्क. And if you think that we can fool those people, we are sadly mistaken. That's the crux of it. Yes, थोड़ा बहुत कहीं तो luck play कर जाता है. That's purely bad luck. जहाँ luck play कर जाना, that's purely bad luck. Your bad luck. So good. So that was a great experience. तो जो सुन रहे हैं, हमें जो सुन रहे हैं, so like all of us imbibe by that कि हम सब यही हमेशा बोलते हैं, सच बोलो और सच के सिवा कुछ मत बोलो. वो जो बोलते हैं ना, बुक पे हाथ रख के गीता की कसम खाकर कहता हूँ, वैसे वाला. सो हाउ वाज दी, अब ये हो गया. सो हाउ वाज द एकेडमी एक्सपीरियंस, इन शॉर्ट कैसे रहा एकेडमी में ना? हाँ, एकेडमी में तो प्रिपेयर्ड थी मैं. आई वाज प्रिपेयर्ड दिमाग में, बिकॉज हस्बैंड हैड जॉइंड बिफोर मी इन IMA. वन ऑफ माई इमीडिएट, मेरी जो मैं से बता रही थी, जो ग्रुप में मेरी फ्रेंड थी, शी हैड जॉइंड बिफोर मी. सो मुझे आइडिया तो था व्हाट एकेडमी इज गोइंग टू बी अबाउट. और उसके पहले सर मैं ना 1 महीने के लिए आई वाज वर्किंग विद विप्रो इन IIT पवई में है उनका ऑफिस, IIT की जगह में. तो वहां में विप्रो के कॉल सेंटर में वहां काम करती थी 1 महीने. दे हैड फ्री जिम. तो मैं क्या करती थी, जल्दी वाली कैब पकड़ के चली जाती थी, वहां जिम करती थी OTA के नाम से. मैंने कहा मैं तो OTA में जाऊंगी. तो मिरर में OTA बोल के मैं भागती रहती थी. पुलअप्स तभी लगाती थी, हाँ 2-3 पुशअप्स करती थी. एंड आई वाज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ. Academy sir overall was really good to me. I had passed in all my drills in first attempt. My studies were good. I had no such major things in academy. It had really sailed well. जब मैं फर्स्ट दिन academy गई थी, मैं लेट ज्वाइन नहीं थी सर. मेरे कोर्समेट्स वगैरह रगड़ा खा रहे थे. ऑल ऑफ अ सडन मुझे सब छोटे बालों में काले नजर आ रहे थे. आई वॉज लाइक यही लड़कियां हैं जिनको मैं SSB मिली थी. और वहां पे उनका सेशन चल रहा था. तो द सीनियर ऑफ माइंड, शी टोल्ड मी, यू न्यू कमर कम हियर. तो मुझे कहते मुझे एक पुशअप मार के दिखा, मैं तेरे को एक चॉकलेट दूंगी. शी हैड अ डेयरी मिल्क इन हैंड. आई सेड मैम एक. इट्स लाइक या जस्ट 1 फ्लैट टाइप, एकदम प्लैंक टाइप मारना है. मैंने कहा ओके. आई स्टार्टेड, आई डिड 20-25 एंड शी वेंट लाइक दिस. ये क्या करी है लड़की, ये कौन आई है? और उसके बाद मेरे कोर्समेट्स ने इतनी गाली मारी है मुझे, इतनी गाली मारी है, कहते तेरे वजह से अभी हमारा रगड़ा लगने वाले हैं, हम बचने वाले, ऑल बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज तू आके डायरेक्टली 25 पुशअप मार के दिखा रही थी. सो सीनियर्स वर हैप्पी, माय कोर्समेट्स वर कंटिन्यूअसली अब्यूजिंग मी. दैट वाज वन स्टार्ट ऑफ माय एकेडमी. तो 25 डेयरी मिल्क मिला कि नहीं? डेयरी मिल्क तो एक ही मिला, गालियां 100 मिली सर मेरे कोर्समेट से मुझे. इतना तेरे को किसने बताया था करने के लिए? उसके बाद जो भी सीनियर होगा, whether that senior was able to do 25. नहीं तो कभी कभी सीनियर को ईगो हो जाता है ना कि 25 कैसे कर दी करके, you should do only 20 करके. ना सर, आई वाज ठीक है, मैं फिटनेस करके गई थी सर, मुझे थोड़ा आइडिया था. एंड सर मैंने स्कूल टाइम पे थोड़ा एथलेटिक्स किया था, सो दैट हेल्प मी नॉट टू गेट इंजर्ड. आई ऑलरेडी हैड अ इंजरी, मैं इंजरी के साथ ही गई थी. आई हैड अ थोड़ा इंजरी इन माई लिगामेंट, बट सर उसी के साथ मैंने पूरी ट्रेनिंग की है. नॉट मेनी पीपल नो, पूरा नी कैप वगैरह पहन के, बिकॉज सर ट्रेनिंग वॉज मच मोर इम्पोर्टेंट.
यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर और मैं नी कैप तो 24 घंटे मेरे पास नी कैप होती थी, ओनली फॉर दैट रीजन कि भाई पैर तोड़ दिया तो रेलीगेट हो जाओगे, नेक्स्ट कोर्स के साथ पास आउट होगे, उससे अच्छा बी स्मार्ट। और जब भी रगड़ा लगता था स्टार्टिंग में ही मैं भागती थी ताकि बाकी लोग पीछे रह जाए, डीएस का नजर उन पे रहे, और फिर मैं पूरा टाइम मकरा मारती थी। मैं कहा पता होना चाहिए कहाँ पे एफर्ट मारना है, कहाँ पे नहीं मारना है। Now in the academy, second term में you would be the senior, correct? So first term में chocolates of milk and all those things happened. How was you as a senior? How was you as a senior in the academy? When my juniors meet me, वो कहते हैं कि हमें डर लगता है, पर आई डोंट नो सर, मैं तो बहुत अच्छी सीनियर थी, मैंने रगड़ा नहीं दिया। अनफॉर्चुनेटली मुझे पनिशमेंट मिल गई थी तो मुझे ही टाइम नहीं रहता था। सो मैं मेरे जूनियर्स को कहती मैं कहाँ तुमको रगड़ा दूंगी, पर कुछ कुछ जूनियर्स कहते नहीं मैम आपने तो हमें बहुत रगड़ा दिया, या कुछ कुछ जूनियर्स कहते हैं मैं तो उससे नहीं बात करूंगी, उससे डर लगता है। बट आई फील ओवरऑल सच आई वॉज अ गुड सीनियर and I never had complaints with any junior. I don't think any juniors had complained with me. नहीं, वो ऐसे ही होता है, हमें लगता नहीं है, we always think we are good seniors, but वो juniors बोलिए तो कमीना था करके ना, this guy was like horrible guy करके। so how was that? I always share this experience, मैं सबको बताता हूँ कि ना when Naval Academy में when we pass out, so that's a very emotional moment for all of us, you know, all of us. It's a great ये भी मैं हमेशा ऐड करके बोलता हूँ ना कि even if you are the richest person in the whole world, you know, richest person, maybe Mark Zuckerberg और अंबानी या अडानी जो भी हो, वो भी ना ये मोमेंट खरीद नहीं सकता है। आप बिलियंस एंड बिलियंस दे दो, एंड दैट मोमेंट इज योर अंतिम पग और पासिंग आउट। सो दैट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस फौजीज जो भी है। सो हाउ वाज दैट फॉर यू? हाउ बिग वाज दैट फॉर यू, यू नो? सो मैं दोनों पार्ट बताऊंगी, उसका फनी पार्ट भी बताऊंगी, दो इंसिडेंट और अच्छे वाली बताऊंगी। फनी पार्ट था कि जब हमारा पीओपी की प्रैक्टिस चल रही थी, जहां पे अंतिम पग लिखते हैं वो नया था, वो मार्बल को एकदम पॉलिश किया था, जिसके वजह से प्रैक्टिस के टाइम पे जो भी अंतिम पग पे जाता था सब स्लिप हो रहे थे। स्लिप टू सच एन एक्सटेंट के मतलब थैंकफुली किसी की कमर नहीं टूटी, बट हर बार जो 3 लोग वहां से पास आउट होते धाड़ 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 दे वर falling and it was so embarrassing, everybody was laughing at the end. That was one thing. और जब हमारी पीओपी थी उस टाइम मेरी एक कोर्समेट when the chief guest was addressing and giving us the speech, she conked off, वो गिर गई। उसके बाद उसको होश आया और वो नीचे खड़ी है और हमें पूछती है मैं ठीक हूँ क्या, मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? एंड सर मतलब सबको हंसी आ रही है, कोई कुछ नहीं कर सकता, हम ऐसे लिटरली मुंह स्ट्रेट करके खड़े हैं एंड शी इज आस्किंग अस दिस, मैं ठीक हूँ क्या, मैं खड़ी रह जाऊं? तो उसको हम धीरे कह रहे थे हाँ खड़ी रह। जब तक वो खड़ी रह रही थी पीछे से वो स्ट्रेचर पार्टी आई उसको उठाने के लिए, तो वो दूर से हाथ लगा के दिखा रही है स्ट्रेचर पार्टी को कि ठीक हूँ मैं। दैट वाज द मोस्ट फनीएस्ट पार्ट विच वाज हैपनिंग इन आवर पीओपी। और जब हमारा अंतिम पग था वहां पे ना थोड़ा सा फिर वो आई थिंक किसी कपड़े से या किसी प्लास्टिक वो जो होता है ना सर मैट से थोड़ा बहुत ऐसे कार्व करके लगाया था ताकि आखिरी दिन कैडेट्स पास आउट होते स्लिप ना हो और वो मीडिया कैच ना कर ले कि ये बच्चे अंतिम पग पे भी स्लिप हो रहे हैं। बट यस सर ओवरऑल इतना इमोशनल था, जैसे जब मेरी ओवर स्टडी जो मेरी इमीडिएट सीनियर थी व्हेन शी वाज पासिंग आउट, हमें वी आर सपोज टू डू ब्रासो ऑफ हर स्टार्स। तो रात को मेरी आदत है सर, मैं हमेशा मेरी नींद नहीं कंट्रोल कर पाती, तो मैं ब्रासो करते करते आई एम सपोज टू prepare her uniform, that is the tradition we used to follow. I was supposed to prepare her uniform, तो ब्रासो करते करते मैं उन्हीं के बेड पे सो गई ना, मैंने उनकी यूनिफॉर्म प्रिपेयर की। सुबह वो मुझे उठाती है, कहती है प्राजक्ता मेरी यूनिफॉर्म रेडी हो गई? मैंने कहा हाँ मैम रात को 2 बजे है अभी कर देती हूँ। देन शी इज लाइक बेटा उठ जाओ, मैं जा रही हूँ, मेरी पीओपी है। हो गई मेरी यूनिफॉर्म, मैंने ही खुद की कर ली। और जब वो निकल रही थी मैम ने मुझे एक डायरी गिफ्ट की, ऑब्वियसली हम गिफ्ट देते हैं बट एक डायरी गिफ्ट की, जो डायरी का आउटसाइड सर एक कवर था जो एक गुड वन जो उनके सीनियर ने उनको दी थी। शी गेव इट टू मी, आई पास्ड इट ऑन टू माय जूनियर एंड देन शी पास्ड इट ऑन टू समबडी एल्स। और जब मैम के मैंने स्टार्स ब्रासो किए थे, अनफॉर्चुनेटली मैं पूरे ब्रासो नहीं कर पाई क्योंकि मैं सो गई थी। और मैम का जो सेकेंड टर्म का यहाँ पे जो साइन होता है दैट 2 और जोजिला का Z, शी हैड गिवन इट टू मी एंड पुट इट फॉर मी। सो दैट वाज द ट्रेडिशन वी यूज्ड टू फॉलो। जब मैं
जब मैं पास आउट हो रही थी, मैं एज इट इज दोबारा मैं जल्दी सो गई, मेरी अंडरस्टडी मेरा यूनिफॉर्म भी बना रही थी, मेरे स्टार्स भी उसने ब्रासो कर दिए, एंड आई हैड पुट माई जोजिला का साइन एंड दोज सेकेंड टर्म वाला बैच टू हर, and she had brassoed my stars. So that is how that thing continued. And yes, especially when you take the oath in OTA and you were not allowed, हमारे टर्म से वो स्टॉप हो गया था, टू यू नो सर, कैप हवे में उछाल देना, वो हमारे ही टर्म से अनफॉर्चुनेटली स्टॉप हुआ था हमारे टाइम से. बट दैट इज द मोमेंट व्हेन यू टेक अ ओथ एंड यू आर इन योर यूनिफॉर्म एंड यू डू विसर्जन, और उसके बाद जो सब चिल्लाते हैं, दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ. आई थिंक I couldn't have anything more beautiful. Even not getting even my marriage, or you can say anything other than that, was not that memorable for me, which my passing out was. Seriously. That's why I see, इसलिए मैं ना कहीं जहाँ पे भी मुझे लोग टॉक पे बुलाते हैं, मैं सबको ही बोलता हूँ, ये जो मोमेंट है ना, nobody can buy this moment. You know, आपके पास ढेरों सारे अरबों खरबों पैसे होंगे, but nobody can buy this moment, and this has to be earned. This has Yes. to be earned, as simple as that. You know, आप पढ़ लिख के IITN बन जाओगे, फलाना ढिमकाना बन जाओगे, you may become a civil services officer, but जो फौजी जो privilege होता है ना, ये जो privilege है कहीं नहीं मिलता है. So all of you, those who are listening us, see how we got emotional about our passing out. You know, I have though Prajakta is a new entrant to the veteran fraternity. I am 12 years senior to her, so both of us still share that same passion. हम आज भी उतने ही इमोशनल है वो पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, and I'm sure each one from Army, Navy, Air Force will be as emotional as us. You know, the tradition, और फौज is all about tradition. फौज is all about tradition, and वो tradition continue करेगा. जैसे like you said, you know, your brasso and your second term tab and your Zozilla का Z, you pass it on to, you know, the next one. So same happens with the Naval Academy also. They pass it on, that frigates. I was from the frigate squadron. F आपका जो होता है वो same. So that's a beautiful tradition. And I think I was not knowing it was from your batch that topi wala tradition band ho gaya. नहीं तो, you know, people used to throw that. Yes, so we were the unfortunate ones. So now some quick questions. You know, like how was the skydiving experience? सर इट एक्चुअली माई मोटिवेशन टू स्काईडाइव गोज बैक इन अकेडमी. मुझे बड़ा डर लगता था वो 5 मीटर 10 मीटर बोर्ड से टू जंप. आई नेवर थॉट कि मैं डरूंगी. मैं अकेडमी के पहले सोचती थी क्या है, जाके तो जंप मारनी है, बट जाके जब जंप मारनी होती है वो बहुत ही डरावनी होती है, बहुत ही डरावनी, पर करनी पड़ती है. तो तभी जब if I'll just cut you here, in fact I'm तीन पीपल जो जब 10 मीटर बोर्ड पे ऊपर जाते हैं ना, एकदम टाइगर बन के नीचे से सीढ़ी चढ़ के ऊपर स्विमिंग पूल के ऊपर जाएंगे, वहां पहुंचते ही दे यूज्ड टू रन बैक, और पीटीआई जो पीटी उस्ताद होते थे, दे यूज्ड टू रन आफ्टर देम ऊपर, एंड इट वाज सच अ सीन. ऑल ऑफ अस, इवन इंक्लूडिंग मी, आई एम सेइंग वो जो होता है. ओके, कंटिन्यू. सो फिर उसके बाद से स्काई डाइविंग सीधा ऊपर. हाँ सर, उस डर के मारे मैंने सोचा यार ये तो मतलब, और उस टाइम ना एक ये हो गई मेरे को हैप्पी रियलाइजेशन कि तुम हाइट से डरती हो. मैंने कहा जिंदगी में मैंने फ्लाइंग की, मैंने ग्लाइडिंग वगैरह की ना, डर नहीं लगा मुझे. पानी से अनकंफर्टेबल है. मैं आज भी कहती हूँ, कोई मुझे बोले स्काई डाइविंग स्कूबा डाइविंग करो, मैं नहीं जाऊंगी. करूंगी, मैंने किया है एज अ ना सर, वो जाके हम करते हैं गोवा में, मैंने किया है, बट मैं सीखूंगी नहीं बिकॉज मेरे को पानी अनकंफर्टेबल करता है. तो वो चीज मैंने इतनी मेरे दिमाग में ले ली. आई फेल्ट नो, आई हैव करेज, आई विल डू इट. एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि स्काई डाइविंग सीखनी है. आई ट्राइड डूइंग इट विद द इंडियन आर्मी. हमने ग्राउंड ट्रेनिंग वगैरह की, बट अनफॉर्सीन कंडीशंस की वजह से हमारा कोर्स बीच में कैंसिल हो गया. दैट इज वाई व्हेन मी एंड माई हस्बैंड वी डिसाइडेड अच्छी जगह चलते हैं, घूमते भी है और स्काई डाइविंग करते हैं. वी वेंट टू न्यूजीलैंड इन 2019. जब स्काई डाइविंग करने की बात आई तो मुझे सबसे पहले उन्होंने लोड में चढ़ा दिया. वी कॉल आसिफ लोड, कि यू आर फर्स्ट इन लोड. तो मैंने कहा भाई मैं, तो कहती यस यू आर गोइंग टू डू एंड द फॉरेनर्स ओवर देयर ना. तो मुझे कहते हैं कि वी डोंट फोर्स पीपल, जो मना करता है उसको हम नीचे लाते हैं. मैंने कहा नहीं, आई एम गोइंग टू गेट आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट, डोंट वरी. तो सर मैं ऐसे चिट लेके गई थी. ऑब्वियसली व्हेन यू आर जंपिंग फ्रॉम 13,000 फीट, इट इज स्कैरी. तो मैंने ऐसे नोट लिख के गई थी कि जिंदगी में कौन सी चीजें ने तुम्हें दुख दिया है और तुम्हें लगता है कि ना तुम्हें ओवरकम करनी है. तो जैसे हमारा जहाज ऊपर चढ़ रहा था, मैं वो पर्चा निकाल के पढ़ रही थी और मैं प्रे कर रही थी.
और उसके बाद जब टाइम आया सर, वो दे ओपन द डोर, अचानक से जहां धीरे हो जाता है, इट स्टॉप्स, ऑलमोस्ट स्टॉप्स, द डोर इज ओपन एंड देयर सो मच ऑफ एयर गशिंग आउट, बहुत डर लगता है। और सर ऐसा नहीं है कि आप जहाज में बैठ के कूदोगे, आप जहाज के बाहर जो स्ट्रट होता है, यू कम देयर, यू स्टैंड देयर, यू डू योर चेक्स एंड आफ्टर दैट यू जंप। तो पहली बार तो मुझे ऐसे लगा जब हाथ बाहर निकाला कि तो हाथ ही मेरा चला जाए, बट वंस आई केम आउट थोड़ा बहुत फियर रहता है, बट देन दैट जस्ट वेंट ऑफ व्हेन आई लेफ्ट माय हैंड एंड आई जंप्ड आउट। मुझे से लिटरली ये फीलिंग आई दैट आई एम फ्लाइंग इन द एयर, और मेरी पोजीशन ठीक नहीं थी, मेरे बॉडी का आर्च ठीक नहीं था। सो द इंस्ट्रक्टर की केप्ट टेलिंग मी डू दिस, दिस इज लाइक कि बॉडी को आर्च करो। तो मैं इतनी खुश थी, मैं उसको ऐसे थम्स अप कर कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और जब हम नीचे आए, दे ऑल स्टार्टेड लाफिंग ऑन मी, दे आर सेइंग दैट यू वर सो हैप्पी विथ योर फर्स्ट डाइव, वी आर टेलिंग यू टू आर्च मोर बाय डूइंग दिस, you are telling us no, I am okay, you are doing this to us. And they kept telling my husband, your wife removed out some paper and she was just doing something, probably some Hindu prayers and this and that, and then she jumped out of the aircraft. So my husband also started laughing और पूछ रहा था क्या लेके गई थी ऊपर। मैंने कहा कोई नहीं, मेरा पर्चा था जो मैंने लिखा था, मुझे क्या क्या जिंदगी में था जो मुझे ओवरकम करना है। एंड दैट वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ माय फर्स्ट डाइव। मैं पूरा फर्स्ट डाइव को मैंने पूरे एंजॉय किया। उसके बाद मैंने टोटल 6 डाइव्स की। वी वांटेड टू कंप्लीट आवर पूरा लाइसेंस, बट अनफॉर्चुनेटली वेदर कंडीशंस, टाइम कंस्ट्रेन, हम नहीं कर पाए, बट डेफिनेटली वी विल गो बैक एंड लर्न मोर। सीरियसली तो यू नो लाइक वो एक होता है ना जो फियर को ओवरकम करना, सो दैट्स a great example. So all those who are listening, see how her life starting from फौज ज्वाइन करने से how celebrated it has been, so that's a beautiful life, प्राजक्ता. बहुत कम लोग को ऐसे मिलता है कि you dream something, you get it, and then you step by step overcome that fear and so many things. Sure. So now अगला question ये है कि how close are you to the animals, because you are an animal rescuer. बहुत कम लोग होते हैं ऐसे. So how did it happen? पहले से बचपन से? सर मेरे दादा के टाइम से, मेरे दादाजी के टाइम से हमारे घर पे डॉग्स, कैटल्स, कैट्स रहे हैं, तो उस समय से आ रहा है। मेरी दादी परदादी कहती थी कि तुम्हारा पूरा देसाई लोगों का पैसा इसी में जाएगा, तुम्हारी पूरी जायदाद इज डेडिकेटेड टू एनिमल्स. So everybody used to laugh over it. That's my father keeps telling. But my father had dogs. My father had Afghan Hound, Great Danes. He had cats. So I was born with them. मेरे हाथ में, मेरे चेहरे पे अभी भी छोटे छोटे मार्क्स है जो मेरे बचपन में मेरे डॉग्स वगैरह ने लगाए हुए. एंड जैसे मैं बहुत बड़ी हो गई, आई वाज पोस्टेड इन पंजाब, पठानकोट, जहाँ पे मैंने मेरे फर्स्ट पेट को टीबा, आई नेम्ड हिम टीबा, उसको मैंने रेस्क्यू किया. उसके पीठ पे इतना बड़ा सा मैगेट का वुंड था, पूरे कीड़े पड़ गए थे, ही वाज इन लॉट ऑफ पेन. तो उसको मैंने 6 महीने ट्रीट किया, बाहर ही रहता था. उसके बाद आई थिंक 10 months का हुआ, देन आई एक्चुअली अडॉप्टेड हिम फॉर्मली, के ना मेरे घर पे आके रहता था, घर में रहने लगा. और तब से मतलब मैं सर एक नॉर्मल सीटी मारती थी, छोटे छोटे पप्स थे अराउंड इसके साथ के भाई बहन, एंड द वे दे यूज्ड टू कम रनिंग टू मी ना, दे मेरा उसी समय माय हार्ट मेल्टेड एंड आई पिक्ड अप. I have total of, I still say sir, I have total of 4. I unfortunately lost one last month, 4th. It was just all of a sudden. She got cardiac arrest and till date sir we have not overcome her loss. तो हम अभी भी कोई पूछता है कितने, हम कहते हैं 4. ये 3 यहाँ प्रेजेंट है, वो तो ऐसी ओमनी प्रेजेंट है. एंड धीरे धीरे करती चली गई. मैं इन 4 को अडॉप्ट किया. मेरे पेरेंट्स कहते थे कैसे मैनेज करेगी, मैंने कहा नहीं, हो जाएगा हो जाएगा. एंड सर टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस आज तक हो पा रहा है हमसे. आई हैव सपोर्टिव पेरेंट्स, सपोर्टिव हस्बैंड, सपोर्टिव इन लॉज ऑल्सो. एवरीबडी इज इन लव विद माई पेट्स. एंड उसके अलावा भी सर जहां भी जाती हूँ, मुझे जो भी डॉग्स दिखता है, मे बी किसी का कुछ हुआ है, आई टेक देम टू द डॉक्टर. और मेरे को थोड़ी बहुत आजकल ट्रीटमेंट पता है, मैं उनकी करती रहती हूँ. कोई कैटल्स मिल जाए तो सर मेरे को लगता है भगवान ने बहुत दिया है हम सबको, और बहुत देता रहेगा. और इन जानवरों को नहीं पता होता दैट मनी इज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग फूड. दे ऑल जस्ट थिंक ना कि खाने के लिए सर उनको क्या चाहिए, नथिंग एक्सेप्ट लव एंड फूड. तो जब भी कभी हमारे घर में इतना खाना बचता है या इतना खाना आता है, इतना राशन आता है, सो आई गिव इट टू ऑल. हम एक्स्ट्रा पेडिग्री वगैरह मंगाते हैं, ऑल फॉर द स्ट्रे डॉग, बिकॉज मेरे वाले तो सर पूरे वीआईपी है. देसी कुत्ते हैं बट वो सबसे वीआईपी की तरह बिहेव करते हैं, उनको एक स्पेसिफिक चीज ही चाहिए. बट देन वी गेट फूड फॉर ऑल. जो भी हमें दिखता है ना, हमारी गाड़ी में भी थोड़ा पेडिग्री वगैरह हमेशा होता है.
थोड़ा सा फर्स्ट एड वगैरह होती है, कोई डॉग मिल जाए, कोई कैटल मिल जाए, जितना हो पाए सर मैं करती हूँ. आई डोंट डू फंड रेजर्स बिकॉज मुझसे नहीं हो पाता. एंड आज तक आई फील सर फौज ने बहुत दिया, भगवान भी बहुत दे रहे हैं, तो पैसे सफिशिएंट है. अगर विल होना सर, पैसे कहीं से भी आ जाते हैं टू हेल्प दीज पीपल. एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आई विश टू हैव अ सेंचुरी ऑफ माई ओन. आई डोंट नो उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे, बट आई थिंक ऑफ हैविंग वन जहाँ पे मैं पूरे डॉग्स, कैटल्स का, जिसको भी प्राणी को आने आके रह ले मेरे पास. See, such a noble thought, बहुत कम लोग करते हैं प्राजक्ता, to be very frank, and मुंबई जैसे शहर के होने के बाद बहुत ज्यादा कम, because we don't have space here, हमारे रहने के वांदे होते हैं यहाँ पर. तो yes sir. So that's so beautiful, and that too for strays. नहीं तो लोग पपीज वगैरह जो the ब्रीड के पपीज होते हैं, जर्मन शेपर्ड हुआ या सम लैब्राडोर हुआ, so that's pretty common, but strays को adopt करना is a very noble deed because उनका कोई नहीं होता है, उनका कोई नहीं Yes, होता है वैसे. So I think more and more people should come forward and do this noble thing, and I'm sure एक दिन जबरदस्त सेंचुरी होगा, बड़ा सा एकदम मोटा सा Yes, मनता sir. हाँ सर. एंड आउटसाइड मुंबई, नॉट फार अवे, जस्ट आउटसाइड मुंबई. तो होप एक दिन इतना पैसा कमाऊं मैं कि मुंबई के जस्ट बाहर एक सेंचुरी खोल दूं ऐसी बड़ी. Seriously. So now some quick questions before we wrap up, like what's two advice you would give to the youngsters? काफी लोग सुन रहे हैं इसलिए, what is the two most important advice? First is to stay focused and second is to not give up. Failures आते रहेंगे, do not give up. Do not give up at all. So who's your favorite sportsman? Sportsman Sachin Tendulkar, of course. क्या बात है. One senior you remember? Okay, my platoon commander, Lieutenant Colonel Anila Khatri, she was recently on the Femina magazine as well. So she's my idol. क्या बात है, I remember. And your favorite posting अभी तक के? Srinagar, best one. And what was the name of your drill ustad? Man Singh Saab, Gulshan Saab, Man Singh Saab, we know them, we fondly remember them. Seriously, all of us remember our drill Saab or PT Saab, na? So. And sir, we had our J also, Subedar Murthy. सर इतने पार्शियल थे साहब मेरे साथ. लोगों की जब जूते की नाल टूटी होती थी ना, सबको पनिशमेंट मिलती थी, मेरे को नहीं मिलती थी. वो मेरे को ना साइड लेके बोलते, देसाई नाल टूट गया है, अगली बार नया लाना, नहीं तो पनिशमेंट में डालूंगा. Because I was good in drill, so he was quite partial with me. So he was my favorite. One ऐसे बदमाश पोस्टमेट ना जो जिसने बहुत पंगे लेके पनिशमेंट खिलाए हैं. नहीं सर, सब अच्छे थे, मैं ही बदमाश थी. मैं ही बदमाश थी. Okay, and probably your favorite war movies which probably you have grown up seeing and which motivated you. So बॉर्डर. अभी भी मेरे दिमाग में वही चलती है, बॉर्डर. आज भी कभी भी लग जाए मैं बॉर्डर देखूंगी, लक्ष्य, बट बॉर्डर मोर सर. हम सबका वही है. मैं भी किसी अभी recently I had given one interview में बोले border border was that motivation to join all those. Now, अभी I think last week I saw that movie again. So कितने बार भी देखो, that's a big motivation, So, yes sir, yes. So now if you were not a फौजी तो क्या होता? एक्टर बनती मैं. So that is an extra curricular thing which you do, ऐसा कुछ है? सर मैं बचपन में करती थी ड्रामेटिक्स, डांस एंड ऑल. घर से एक ही था सर, रुइया कॉलेज से. यू वुड नो सो मेनी सेलिब्रिटीज आर देयर फ्रॉम मराठी इंडस्ट्री एंड ऑल. फॉर दैट मैटर महेश मांजरेकर एंड ऑल आर फ्रॉम रुइया. माय फादर टोल्ड मी, जिंदगी में कुछ भी करो, अगर मैं तुझे वहां, सर हमारा नाट्यावलय है, दैट इज द हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, दैट ड्रामेटिक्स वाला कॉलेज वाला ग्रुप. मेरे को पापा कहते थे, अगर मैंने तेरे को कभी 3rd फ्लोर पे देख लिया इन दैट ड्रामेटिक्स क्लब, सो यू वॉच आउट. बस यही मेरे को धमकी मिलती थी घर से, बाकी कुछ नहीं. मैं बॉक्सिंग करूँ, हाँ करो, मुझे ये करूँ, हाँ करो, फौज में जाओ. मैं एक्टिंग के लिए जाऊं, वहां से बहुत बड़ा नो होता था. बस उसी चीज में नो था घर से. One thing which you hated in academy?
हाँ हेडेड सर, ये दौड़ के कदम ताल, वो जान लेता था कि दौड़ के कदम ताल, दैट वाज द वर्स्ट पार्ट। मतलब अनंत काल तक दौड़ के कदम ताल से, आई नेवर अंडरस्टूड, आई यूज्ड टू गिव ब्लैंक लुक्स टू माय ड्रिल उस्ताद कि ये क्या है अनंत काल, हाउ एम आई सपोज्ड टू डू इट, और उसके से बहुत रोलिंग भी खाई है मैंने। So how many restrictions did you get पूरे 2 टर्म में? सर 2 टर्म में मिला के, फर्स्ट टर्म में 3, फिर 21, 25। My God, सेकंड टर्म में 21? यस सर, तो फोन पकड़ा गया था मेरा, हमें पूरे कंपनी को 7 रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी मिली थी। अनफॉर्चुनेटली सर, मैं लोगों को बताती थी ऐसी जगह वहां फोन पकड़ा नहीं जाएगा, मेरा फोन पकड़ा गया क्योंकि आई वॉज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड आस्किंग के कल के रिस्ट्रिक्शन में मुझे XYZ चीजें चाहिए, प्लीज ले आना। उसका फोन पकड़ा गया जिसमें उस डफर ने मेरा नाम प्राजक्ता लिखा था, और इसलिए मुझे 14 मिली। नहीं तो मेरे फोन छुपाने वाले जो जगह थी, ऑल दोस हु एस्पिरेंट्स ऑफ योर जॉइंट OTA, आई टेल यू फोन कहाँ छुपाते हैं तो जहां जहां मैं फोन छुपाती वहां नहीं पकड़े गए, किसी और का पकड़ा गया, इसलिए मुझे पनिशमेंट मिली। So last few question, how do you rate SSB? SSB is easy, tough, medium, या कोई भी क्लियर कर सकता है? No sir, it is, if you are prepared you can, I feel sir if you have it in you, जो 16 officer like qualities आपके पास है और आपका ये strong है ना सर, mental stress लेना, then you can clear. I would say difficulty level would be 9/10। और जो लोग कहते हैं ना मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, हर चीज में गिव अप मारने वाले हैं, उनके लिए डिफिकल्ट है। Seriously. So guys, it was great talking to Prajakta, for close to 1 hour 15 minutes. My God, Yes, 1 hour sir. 15 minutes हम बातें कर रहे। See, that's how we talk. हम जब फौजी बात करते हैं, ये तो कुछ नहीं, अगर हम एलिमेंट्स में We आ can जाए go for hours and hours. और एक ओल्ड मॉन्क लेके बैठ जाए तो फिर सारी रातें बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है बात करने के लिए। तो थैंक यू प्राजक्ता। I think a lot of people are asking a lot of questions. I'm sure you can start following her on Instagram and message karo. I'm sure in her free time she would definitely answer. Yes. OLQs and all are jargon which they give in academy. हम सब में OLQ कूट के भरा होता है, all of us, all those who are watching, आप सब में OLQ छुपा होता है कहीं ना कहीं। वो है कि right time पे बाहर आना चाहिए, that is what is important, and that is what is all about SSB and the this thing. So so last question Prajakta before we end, so are you happy or sad as a Fauji? कुछ लोग बोलते हैं यार नहीं जाना चाहिए था। नहीं सर, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, आई स्टिल मिस माई यूनिफॉर्म, आई स्टिल मिस माई सल्यूट्स, ऑल दोज विच वी हैव अर्न्ड, आई वॉज हैप्पीएस्ट। मतलब आई थिंक दैट इज वन थिंग इन माई लाइफ जो मुझे था कि मुझे ये करनी है, एंड टचवुड मुझे वो अच्छा प्रोफेशन मिला जो मेरे लाइकिंग का था, अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, बट येस वो भूत मेरा कब का उतार दिया था घर से, बट येस गेटिंग इनटू फौज, आई एम हैप्पी, सुपर हैप्पी। So great. So guys, I think it's time to end this talk because 1 hour 15 minutes on a Saturday evening. It was such a learning, and let me tell you, Prajakta, I mean, most of us Faujis are ऐसे ही होते हैं, 19-20 का फर्क होता है, whether कितना भी senior हो, कितना भी junior हो. It's thanks to our academies, how they nurture us from so many, so all of us have some stories, and I'm sure all of that. So guys, see a life here, an amazing life. Where it's a life of focus. जो बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं ना फौज में जाना है, and her life is an open book, an example for how to go about, and visualize जो बोलते हैं ना अपने आप को फौजी करके visualize करना, probably that particular thing combined both of us together. Like we have been visualizing my early days, I've been visualizing in myself in naval uniform. She visualized herself in army and flying and all those things. Everything happened for her also, and so it was so amazing. Prajakta, मजा आया being a Mumbaikar, both of us. खूप असं म्हणतात ना, खूप मजा आला करके ना मराठी ending. So God bless. Thank you so much. Keep in touch.